Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students, as well as those students who learn something new in the computer science field. And that tutorial is the continuity of the Series 3 Output Device Monitor, and in this tutorial we will learn about the second type of monitor, that is LCD. And in the previous tutorial we discussed about the first type, CRT monitor. And those who don't see that tutorial, please see that tutorial, and after that tutorial, and increase your knowledge for the practicals as well as theory, or as well as the competitive exams also. Now we will learn about that, what is LCD. And LCD is the liquid crystal display, and it's a very flat panel display or other electronically modulated optical device. And they were originally used because of the lower power consumption, and it's also very lighter and take up the very less space other monitors and other screen types. And they also caused it to be more expensive, and commonly it is used in the laptop screen also. But it doesn't mean it is only used for the laptops, it is also used for the computer monitor also, that is available with the CPU. It's for the desktop computer also, but mainly its usage in the laptop computer. And after that, before we will discuss about the working of the LCD, that how it will work, we will learn about that who invent the LCD screen, because that is the very good question for the competitive exams and as well as the practical exams also. And who developed the LCD, who invented the LCD, that the person name is the George H. Halimar, and he was electric engineer, and he was invented in 1960s era. And he invented that kind of screen display that used liquid crystals to project the images. And that technology is not used only into the computer monitor, that is also used in your mobile phones, in even the telephones, even the digital watches, and also in the flat screen TV that available into your home, that is the LCD TV. And same technology used in the computer monitor also. Now we will learn about the working principle of LCD monitor, and we also know that how it will work. एंड सबसे पहले हम इसमें LCD मॉनिटर में ही देखते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है कि जो इमेज है वो कलर फॉर्मेट में आएगी, और आपको मैंने प्रीवियस सीरीज़ में भी बताया था कि जो पिक्चर आपको डिस्प्ले होती है वो पिक्सल फॉर्मेट में होती है, और ये जो आपको इमेज अभी दिख रही है ये है पिक्सल्स, कि कैसे अब वो कलर्स जो होते हैं वो RGB स्कीम से रेड ग्रीन ब्लू से कलर बना के आपके सामने जो है वो शो करता है फुल फ्लेज इमेज में। फर्स्ट प्रिंसिपल तो यही है, एंड ये है इसके RGB स्कीम का फुल फ्लेज डायग्राम, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि RGB दैट इज रेड ग्रीन ब्लू, 3 कलर्स का डिस्प्ले LCD में ऑलवेज चलता है, और इससे वो 256 कलर्स तो डेवलप करता ही है, लेकिन 1000 ऑफ कलर्स और भी डेवलप करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है येलो, वाइट, क्यान, ब्लू के कितने सारे कलर्स होते हैं, ग्रीन के कितने सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स डेवलप करता है। इसलिए आपको LCD में जो डिस्प्ले पे इमेजेस नज़र आती है उसमें कभी पिक्सल्स फॉर्मेट नज़र नहीं आते, फुल फ्लेज पिक्चर ही नज़र आती है। वो कलर्स के कॉम्बिनेशन की हेल्प से उसको बनाता है, और LCD में जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है ये उसकी हेल्प करती है। और अब हम देखते हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं LCD में। ये जो स्क्रीन है ये फुल फ्लेज LCD की है, जो कि आपको फ्रंट पे दिखती है। वो फर्स्ट पार्ट जो लेबल किया हुआ है इस डायग्राम में मैंने, वो है डिस्प्लेड इमेज, और ये डिस्प्लेड इमेज आपको फ्रंट पे दिखती है, और ये सब कुछ इसकी बैक साइड पे होता है जो कि इंटरनल होता है और आपको बाहर कभी भी नज़र नहीं आता। और चाहे वो आपका LCD मॉनिटर हो
एंड फिर आपका एलसीडी टीवी हो, इवन आपका जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वो भी एलसीडी डिस्प्ले की ही होती है, सब में ऐसे ही फंक्शंस चलते हैं वहाँ पे। और इसकी स्क्रीन में जो सबसे पहले वर्किंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द स्क्रीन, वो सबसे पहले एक मिरर लगा होता है। मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होके जो है आगे ग्लास फिल्टर, सेकेंड पार्ट ग्लास फिल्टर करता है, एंड आफ्टर दैट उसको करंट के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बाद जो एलसीडी की अपनी लिक्विड क्रिस्टल है ना लेयर, वो अवेलेबल होती है। एंड लिक्विड क्रिस्टल से जब वो कलर्स लेके आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मिलते हैं ताकि वो आपको अब इमेज डिस्प्ले कर पाए, जो कि वो ग्लास फिल्टर जो है उन कलर्स को फिल्टर करता है कि जो एक्चुअल में इमेज के कलर्स थे, क्योंकि पिक्सल्स इतनी सारी होती हैं और उसमें से उसने परफेक्ट इमेज आपको दिखानी होती है, और वो फिर ग्लास फिल्टर उसको काम करके एंड आफ्टर दैट आपको इमेज डिस्प्ले करता है। और इसमें जो इसका एलेबोरेशन पार्ट है कि ये पोलराइजिंग फिल्म या पोलराइजिंग फिल्म कैसे वर्किंग करती है, क्या काम होता है इसका, ये आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसका ही नेक्स्ट पार्ट उसमें एलेबोरेशन मिलेगी, क्योंकि इसमें आपका जो है इन्वेंशन का भी बात हो गई है, टेक्नोलॉजी की भी बात हो गई है। आप पहले इतना अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो, आफ्टर दैट पोलराइजिंग फिल्म का एग्जैक्ट काम और नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैसे वर्किंग करते हैं ये आपको बाय टुमारो एज पर द शेड्यूल डेफिनेटली देखने को मिलेगा एलेबोरेशन पार्ट में। और फिर आपको इन दोनों पार्ट को रिलेट करके इजीली एलसीडी की टेक्नोलॉजी समझ आ जाएगी। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।